Begin with the two-way ANOVA model. Hello. So before starting with two-way ANOVA model, how many of you are done with the one-way ANOVA model? रिवीजन नहीं किया है पर जितना आपने पढ़ाया मैं वही याद है. Yes. Hello. Yes. So one-way ANOVा model, जर पर कल तक जो पढ़ाया मैंने आप सबको, तो वो तो हो गया होगा ना. हेलो. उसके बाद रिवीजन नहीं किए क्या? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट. सो वन वे ANOVA मॉडल में हमने सिर्फ जो चीजें देखी, हमने पहले मॉडल देखा. यस. मॉडल के बाद हमने देखा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स. बराबर. लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स के बाद फिर हमने देखा व्हाट, सो रैंक ऑफ मॉडल. फिर हमने देखा व्हाट, एस्टिमेबिलिटी. आफ्टर सीइंग द एस्टिमेबिलिटी वी सॉ ब्लू, और ब्लू देखने के बाद फिर हमने देखा टेस्टिंग. यस. एंड इन टेस्टिंग वी फाउंड अवर ANOVA टेबल. ओके फाइन. सो ये सारी चीजें थी. यस. सो one way ANOVA model, we are done with the one way ANOVA model. That was quite simple. So आता मी पीडीएफ ओपन केली आणि पीडीएफ मध्येच एक एक टर्म्स मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार आहे, बिकॉज त्या प्रत्येक इक्वेशन पुन्हा पुन्हा लिहिण्यामध्ये आपला वेळ जाणार आहे. सो आर यू फाइन विथ दॅट? हॅलो. Yes. 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 Okay. So shall we begin? So see, we are seeing one-way ANOVA model. Yes, we are seeing one-way ANOVA model with one observation per cell and without interaction. That we are seeing. So म्हणजे काय? तर सी आपण काल काय बघितलं की we were analyzing the schools. Am I correct? So school 1, school 2, school 3, school 4 and school 5. So there are suppose 5 schools, okay, and in which, okay, so in that 5 schools we are not just analyzing that 5 schools, so we are analyzing the classes. So classes in that school also. So let us consider only important classes. So grade 4, grade 4, 4th grade is important, grade 7, grade 10 and grade 12. Yes, so these are important grades. So we are analyzing that important grades in the college. Yes, in that particular school. Okay, are you understanding what I am analyzing? Hello, are you able to understand these things? स्नेहल. हाँ सॉरी मैं कामात होतो जरा. Yes, fine, no problem. So this is my two-way ANOVA model. If you can see, this is my two-way ANOVA model and I want to analyze these things. ओके. हाँ Okay. कालचं एक्झाम्पल घेतलेलंच तसंच ना. तसंच.
So these are my schools, and these are my classes. Okay. So grade 4 means 4th standard, 7th standard, 10th standard, and 12th standard. So we are analyzing these schools on the basis of these some standards. So okay, हे का? कारण की 4th standard ला एक स्कॉलरशिपची एक्झाम असते, 7th standard ला स्कॉलरशिपची एक्झाम असते, देन ग्रेड 10 ला बोर्डची एक्झाम असते, 12th grade ला बोर्डची एक्झाम असते. So these are some standard exams which are conducted in at the higher level. Okay, so in which each school participates. Otherwise, other exam conducted in school itself, so that are not the parameters we can use for comparison. Okay, so these are we are comparing. So in the grade 7, grade 4, the whatever the average score of this school 1 was, let us say 90%. Then school 2 was 70%, school 3 was 85%, school 4 was 98%, and school 6 was 67%. So these are somehow we are comparing like this. Are you getting this? Yes. Yes. So like this we are comparing each and everything. So these are average results of each. These are average results of each school per grade. Okay. So these two parameters we are considering, and one observe. Hello. सी आता मी प्रत्येक गोष्ट डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. ओके. सो व्हॉट इज दिस? सो दिस इज वन ऑब्झर्वेशन पर सेल. ओके. सो हिअर वी आर कन्सिडरिंग. सी इथे मी काय केलंय बघा. स्कूल 1 मध्ये ग्रेड 4 म्हणजे 4th स्टँडर्डचा एकच मुलगा असेल का स्नेहल? हॅलो. पहिल्या शाळेत 4th स्टँडर्डचा एकच मुलगा असेल का? हॅलो. नाही. नो, देर वोंट बी अ सिंगल बॉय. ओके. बट टू फिट दिस थिंग into a single cell, I have done what? So I have instead of writing individual scores of each student, I have taken the average of the students. Yes. So that's how I got the one observation per cell. Okay. But instead of that, मी जर असं लिहिलं की स्कूल 1 मध्ये 4थी मध्ये किती मुलं आहेत? सपोज 30 मुलं आहेत. प्रत्येक शाळेमध्ये प्रत्येक वर्गामध्ये 30 मुलं आहेत असं जर आपण अज्युम केलं. ओके. सो देन दॅट वुड बी 2-way ANOVA with 30 observation per cell. Are you getting this? Hello. Yes. And whenever there would be suppose स्कूल 1 मध्ये 4थीला, हॅलो, स्कूल 1 मध्ये 4th स्टँडर्डला सपोज 30 पोरं आहेत. स्कूल 1 मध्ये 7th स्टँडर्डला सपोज 40 मुलं आहेत. स्कूल 1 मध्ये 10th स्टँडर्डला सपोज 20 मुलं आहेत. आणि स्कूल 1 मध्ये 12th स्टँडर्डला फक्त 10 मुलं आहेत. सो व्हॉट वुड बी दॅट? So that would be 2-way ANOVA with unequal observation per cell. क्या ये डिफरेंस सबको समझ आया? हेलो. Yes. So now we are analyzing. आता आपण कोणता मॉडेल अनालाइज करतोय? Which model we are analyzing? So we are analyzing which ANOVA? 2-way ANOVA. First of all, it is a 2-way ANOVA. Why it is a 2-way ANOVA? Because we are considering two factors. Which are those two factors? Hello? Schools and classes. Yes. Schools is one factor and second factor is classes or grade. Now you are absolutely correct.
So these are two factors. Are you getting this? Okay. And and what are our scores, observations or values? So values are denoting nothing but the percentage. Yes, क्या ये बात सबको समझी? Hello. Yes. Yes, fine. So now see, we are analyzing two-way ANOVA. So let us consider this two-way ANOVA. Okay. So now if you can see, this is Y11, this is Y12, this is Y13, and this is Y14. And similarly, this is Y21, so on up to this is Y51, Y52, Y53 and Y54. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. Smithal, yes. So these are the things. Okay. So Yes. these are our observations. Okay. So if you can see, okay, if you can see, my I denotes for the factor A. That factor A is a school. Okay, and factor B is a classes. Yes. Okay. So here it would be SI. And here somewhere it would be what? It would be G, J. G means grade. G for grade. Are you getting this? So these are my factors. Okay. So whenever I will sum over this entire thing, so this would be, see, Y1 dot, if I sum over all these things, hello? Yes. Yes. And if you can see, so Y1 dot is what? So Y1 dot is nothing but summation of Yij. Okay. Over which variable? So over C. Over the values of J. J1, J2, J3, J4. Yes. So over the values of J. Are you getting this? So we are summing Yij over the values of J. Then we got Y1 dot. So in short, we will get Yi dot whenever we will sum Yij over J, okay, and we will get Y dot J whenever we will sum Yij over I. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. यस. एंड अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने Yij को ओवर J सम किया है तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए अगर मुझे एवरेज लेना है इसका? तो सो सी, J की कितनी वैल्यूज आती है वो देखते हैं पहले. सो J की वैल्यूज आती है Q. सो सी, whenever I will have Yi dot, that time I will sum Yij over J and divided by Q. Are you getting this? Because my J is going from 1 to up to Q. So average का मतलब क्या होता है? Sum of Q observations divided by number of observation, that is Q. That is the thing. So whenever I will get Y bar dot J, so it would be 1 to up to P and divided by P. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. Yes. So now let us move on to two-way ANOVA. Okay. See, Snehal, how many factors are there? 4. अच्छा हाँ, factor 2. Two factors, A and B. There are two factors. Okay. So see, this A factor may have some effect on the mark. See, सगळ्याच शाळेतल्या मुलांचे मार्क्स सारखे आहेत का? हॅलो? नाही. Is there? Yes. So if you can compare the grade 7, grade 4 जर मी कॉन्स्टंट ठेवला तर प्रत्येक शाळेतल्या मुलांचे मार्क्स वेगळे आहेत. बरोबर? सो फॅक्टर ए जर मी स्कूल कन्सिडर केला तर डज माय स्कूल अफेक्ट द मार्क्स? हॅलो?
Yes, Santoshi, does my school affects the marks? Yes. येस, बिकॉज कधी कधी आपल्याला वाटतं ना, मी त्या शाळेत असतो तर मला 10वीला जास्त मार्क्स पडले असते. दॅट हो. इज द थिंग. ओके, सो सिमिलर वे. ओके, सो वॉट एव्हर द इफेक्ट ऑफ स्कूल, इफेक्ट कोणाचा आहे? इफेक्ट ड्यू टू स्कूल. ओके, ऑन विच, ऑन व्हॉट? ऑन ऑब्झर्वेशन. ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय? ऑन मार्क्स. So that we will call it as alpha I. Are you getting this? Yes. Yes. And my another factor is classes. So if I say my school one is constant, okay, are the marks of each and every classes are same? No. 4th standard, 7th standard, 10th standard and 12th standard, all they have different marks. Are you getting this? So therefore this Bj, the next factor is effect of what? Class, that is grade on marks. क्या ये बात सबको समझी? Yes. Yes. So these are my alpha i's and beta j's. Okay. So now let us define our model. Okay. और एक बात कि कोई तो जनरल इफेक्ट भी होगा. हेलो, जनरल फैक्टर्स का इफेक्ट भी होगा. मतलब समझो कि रादर देन दिस कोई तो फैक्टर होगा जो ये सारी चीजों में कॉमन रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं ग्रेड के बारे में बात करूं तो ग्रेड 4 में जो स्कूल 1 के बच्चे हैं उनका एज क्या रहेगा? हेलो, समथिंग स्कूल 4th के बच्चे तो 10 एज रहेगा. हेलो, हाँ, यस. so this is the common factor in all schools. Okay, or else we can say कि अगर ये सारे के सारे स्कूल्स महाराष्ट्र बोर्ड के, यस, तो सबका सिलेबस तो सेम रहेगा. हेलो, यस. तो जो कुछ भी है सबका सिलेबस सेम है, सबके लिए चीजें सेम है. वी हैव सम आइडेंटिकल कंडीशन वी हैव मेंटेन. So that identical conditions come under the general mean effect. Are you getting this? So that general mean effect doesn't depend upon the C. आणि मग यांना स्कोर करण्याची स्कोरिंग सिस्टम काय? पर्सेंटेज सिस्टम. Are you getting this? So scoring system is the same. Are you getting this? So therefore that comes under the general effect. So ज्या गोष्टी कॉमन आहेत सगळ्यांमध्ये, so that common things come under general mean effect mu. Okay, got it? Hello? Yes. Yes. So my two-way ANOVA model now becomes Yij, which is nothing but the observation, then mu, which is general mean effect. Yes. Then alpha I. What is that alpha I? So that is nothing but effect due to ith level of factor A. So in this example, I can say that effect due to ith school. Am I correct? Yes. And the beta j. So beta j would be the effect due to jth level of factor B. Factor B क्या था? Grade. Yes. Factor. So I can say that beta j is nothing but effect due to jth grade. ओके, सबको पता है कि 10वीं में हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, तो वहां पे बच्चे लोग ज्यादा पढ़ाई करते रादर देन 7th और 4th. तो स्कूल की वजह से इफेक्ट होता है ना, तो वो इफेक्ट हम बीटा जे में कैलकुलेट करेंगे. यस, क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. Yes. So Snehal, how do we calculate the, sorry. So then, okay. So we are done with our model. Model सबको समझा? Hello. हाँ. ओके. सो स्नेहल, तू मॉडेल घेऊन गेलीस तुझ्या बॉसकडे. बॉस काय करेल? हाकलून लावेल ना?
हो. आणि काय म्हणेल? पॅरामीटर्स एस्टिमेट करून आण. Yes. So now our next aim is to estimate the parameters. So मग parameters estimate करायसाठी काय करशील? Which method you will apply? Least लीस्ट square. स्क्वेअर. Yes, least square method we will apply. Okay. So let us see that least square method. Okay. So first of all, in least square method, what we do? What is our, sorry, so least square method. मैं लिखता हूं least square method. Okay. So least square method. Aim is what? Aim of least square method is to estimate parameters. Aim of least square is to estimate parameters. Isn't it, Snehal? हा, आणि मिनिमायझिंग एरर. Yes. Aim is to estimate parameters, and in the procedure, we can say that procedure, theory, and rule. So in the procedure or rule, what is the thing what we do? So least square estimate चा rule काय असतो? So to minimize sum of square of error. Yes. So now in the least square in the two-way ANOVA model Yij. Okay. So what is our error? Mu plus alpha I plus beta j minus Eij. Am I correct? So मेरा error क्या है? Yij माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे. Yes. So मेरा एरर है Yij माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे. ये मेरा एरर है. तो मेरा phi is what? Sum of square error. ये मेरा फंक्शन होता है. So sum of square error means double summation Ij the whole square. Am I correct? Yes. Yes. Double summation Eij the whole square. So Eij क्या है? Yij minus mu minus alpha I minus beta j the whole square. Am I correct? Hello? Yes. Yes. Okay. So इसको अगर मैं with respect to d, तो अभी क्या करना है? तो अभी ये phi फंक्शन को मुझे with respect to what differentiate करना है? So to minimize this, I have to differentiate this with respect to mu, with respect to alpha 1, alpha 2 up to alpha what? C. In our model, how many alphas are there? P. So yes, so there are p alphas. So alpha p. So there are p levels of factoring. Yes, therefore alpha p. And also I have to differentiate it with respect to beta 1, beta 2, beta j, sorry, up to beta q. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं? तो सम ऑफ स्क्वायर एरर को डिफरेंशिएट करते हैं विद ईच पैरामीटर, विद रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर. यस स्मितल, ये बात समझे? हेलो? Yes. Yes. So we will differentiate it with respect to mu, with respect to alpha 1, so on up to alpha k, then beta 1, beta 2, so on up to alpha p, and so on up to beta q. So see, Smithal, what I am doing, so instead of solving d phi by d alpha is equal to 0, d phi by d alpha 2 is equal to 0, so on up to d phi फक्त by आई d. साठी सॉल्व करणार ना. सांग ना, मी सांगतोय तुला. So instead of solving this alpha p is equal to 0, हे किती p equations आहेत ना. So instead of considering this all equation, if I consider
d phi by d alpha I, okay, is equal to 0. Yes. So that will give me the solution, and I will just say that I is ranging from 1 to up to p. So that means I am solving for all i's. Are you getting this? म्हणजे मी p इक्वेशन सॉल्व करतोय हे. फक्त मी ते p इक्वेशन प्रत्येक इक्वेशन लिहत बसलो नाही. I just generalize that thing. Yes. Did you get that? Hello? Yes. Yes. So मग मी आता first I am solving for parameter first mu, general mean effect. I am solving this. So that we know d phi by d mu. So it will give me what? Is equal to 0. So it will give me differentiation of this. So see, double summation I over j, I goes from 1 to up to p, j goes from 1 to up to q. Yes. And differentiation of this thing would be, see, y square side derivative as the 2y. Am I correct? Yes. Yes. So it will give me 2yij minus mu minus alpha I minus beta j. Yes. And again the derivative of this thing. So if you can see, derivative of this term is 0, this term is 0, this term is 0, because it does not depend upon mu, and we are differentiating with respect to mu. Okay. So then it will come minus 1 is equal to 0. तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये 2 और -1 कांस्टेंट है, वो साइड जाके 0. तो ये बन जाएगा, मैं डबल समेशन अप्लाई कर रहा हूं सब पे. यस. तो ये बन जाएगा सी डबल समेशन yij. Am I correct? Hello? Yes. Then mu into capital N, because mu doesn't depend upon I and j. Hello? Yes. Minus, see, alpha I, it depends upon I, not on j. So I will only say summation alpha I, and this sum over j will give me q. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. Minus this will be sum over j beta j, and it doesn't depend upon I, so this sum over I will give me p is equal to 0. So then this thing is nothing but y dot dot. Am I correct? Hello? Minus capital N mu hat. I am putting hat. स्नेहल का मी hat put करतोय? Estimated असणार ते. Yes, these are estimated parameters. This is nothing but q into summation alpha I minus p into summation beta j hat. Yes, is equal to 0. So that would be nothing but y dot dot is equal to n mu hat plus q into summation alpha I plus p into summation beta j. Hello? Yes? सबको ये बात समझी? Yes. So this is my first normal equation. Okay? आता मी ना ह्याच सम ऑफ स्क्वेअर ला विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आय डिफरन्शिएट करून दाखवतो. ओके. सो मग तुम्हाला बीटा जे ची टर्म तुम्हाला कळेल. ओके. सो डी फाय बाय डी अल्फा आय इज इक्वल टू 0. सो व्हॉट इज माय फाय? So d phi by d alpha I. So phi is my double summation yij minus mu minus alpha I minus beta j the whole square. Okay. This is the thing, Snehal. This is my double summation. Yes. I goes from 1 to up to p and j goes from 1 to up to q. Okay. So Snehal, I am differentiating with respect to what? Alpha I. Hello? Yes. So I should split this thing. I should split this thing, this sum of square with respect to I. Are you getting this? Hello? Yes. With respect to I. So what it will become? So I will put the values of I one by one. Santoshi, are you getting this? Hello?
Yes, yes. So when I put I is equal to 1, so this will become C. Summation J goes from 1 to up to Q. Then I am putting I is equal to 1. Okay, I is equal to 1. So then this will become Y1J minus mu minus alpha 1 minus beta j the whole square plus sign because it is a summation. So plus sign, then I takes next value 2. So j goes from 1 to up to q. This is y2j minus mu minus alpha 2 minus beta j the whole square. Similarly, it will take the ith value. So j goes from 1 to up to q. This would be yij minus mu minus alpha I minus beta j the whole square, and so on up to the summation j goes from 1 to up to q. Y we are seeing for which value? Pth value. Yes, pth value. So y pj minus mu minus alpha p minus beta j the whole square. ऐसे ही हम इस सम ऑफ स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. Yes. Mayur, did you get that? Yes. So now see, Mayur, tell me, what would be the derivative of alpha I? Sorry, derivative of this entire term. Hello, this entire term with respect to alpha I. What would be the derivative of this? 0. Yes. Why 0? Because alpha is term is alpha 1. Yes, exactly. There is no term of alpha I over here. Okay, it is alpha 1, not alpha I. Yes, so therefore this derivative will become 0. Again, this derivative also will become 0, and this last derivative will also become 0. So what we will left with? So we will left with only this middle term, and we will differentiate that term with respect to alpha I. Okay, so how to differentiate that? So let us differentiate. Mayur, tell me what would be the derivative of this? Okay, so this we are differentiating with respect to alpha I, and our summation is over j. So that thing doesn't affect on our summation. So we will keep it as it is. Then we have to differentiate this. So it would be 2 yij minus mu minus alpha I minus beta j. Yes, am I correct? And which I will multiply by minus 1 because the derivative of minus alpha ij is minus 1. And I will equate this derivative with 0 to find the next normal equations. So then what would be the next normal equation? So this will become 0. Go to that side. So this is summation yij minus mu. Okay. So summation yij minus summation, see, summation is over, j goes from 1 to up to q. J goes from 1 to up to q. Yes, mu minus summation j goes from 1 to up to q alpha I minus summation j goes from 1 to up to q beta j is equal to 0. Yes, so if you can see, what would be this summation yij over j? Hello. So isn't it Yes. yi dot. Yes. Then this would be what, Snehal? Q mu. Yes. Mu hat, I should say. Q mu hat. No, not. You don't say sorry. I should say sorry. Okay. And summation alpha I. Summation alpha I over j. So it is a alpha I. There is no term of j over here. So it won't affect the thing. So जसा q mu आला तसाच q alpha hat पण येणार. Alpha I hat पण येणार. Yes. And then we will left with minus beta j. Double summation beta j over j is equal to 0.
So then what I will get? So I will get yi dot q mu hat plus q alpha I hat plus j beta j. Okay, and is this a single equation? Hello Smithal, is this a single equation? No. How many equations are there? I is equals to 1 to up to n. Exactly. Not n, 1 to up to p are there. Sorry. So these are total p equations. Are you getting this? Everyone got this? So ऐसे ही प्रीति, अगर ऐसे ही हमें with respect to d phi by d beta j को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम Q का वैल्यू पुट कर यस Q का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम समेशन J को स्प्लिट करेंगे. ओके, समेशन J को स्प्लिट करेंगे. तो फिर डायरेक्टली मुझे पता है कि इससे आंसर क्या आएगा. तो इससे आंसर आएगा, देखो, समेशन ओवर I आएगा. I गोज फ्रॉम 1 to up to P. एम आई करेक्ट? 2 into yi माइनस म्यू माइनस अल्फा I माइनस बीटा j माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यही आंसर आएगा. इज एवरीवन विद दिस? हेलो. तो Yes. फिर मेरे नॉर्मल इक्वेशंस क्या बन जाएंगे? बताओ प्रीति, आप ही बताओ. लास्ट वाला बताओ डायरेक्ट. नो, व्हाट वुड बी दिस नॉर्मल इक्वेशंस? यस, लास्ट वाला बताओ. y डॉट j हाँ, ये y डॉट j बन जाएगा इज इक्वल टू p म्यू यस p म्यू है प्लस समेशन अल्फा I वैसे ही रहेगा बिकॉज I समेशन goes from 1 to p प्लस अल्फा I हैट होगा यस अल्फा I हैट प्लस Plus p बीटा j हैट. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. तो क्या सबको अपने नॉर्मल इक्वेशन समझ में आए? हेलो. Yes. अरे हाँ ना बोल. Yes. Yes. Yes, so these are my normal equations. This is my equation number 1. This is my equation number 2. This is my equation number 3. And these are how many equations? So these are P equations. These are Q equations. So in total there are how many normal equations, Rushali? समझे? हेलो. यस. सो अभी मुझे ये बात बताओ कि जो हमारा लीनियर मॉडल्स था, व्हाट वर द नॉर्मल इक्वेशंस इन द लीनियर मॉडल्स? अरे भाई, लीनियर मॉडल के नॉर्मल इक्वेशन बताओ भाई कोई तो. X prime x beta hat is equals to x prime y. Yes, x prime x beta hat is equal to x prime y. Hello. X prime x beta hat is equal to x prime y. X prime y. Okay. So if you can see at the LHS left hand side of normal equations, there are what? Parametric functions, that is linear combinations of parameter, and at the right side RHS of this equation there are observation function. क्या ये बात सबको समझी? स्मितल, प्रीति, रुशाली, कल ही हमने देखा था. यस, शमा, संतोषी. हेलो. यस. तो अब हम देखो, मयूर, टेल मी की हे नॉर्मल इक्वेशन्स आहेत, तर यामध्ये आपले पॅरामीटर्स कुठल्या साईडला आहेत? लेफ्ट साईडला की राईट साईडला? राईट साईडला. इथे राईट साईडला आहेत. सो मी या नॉर्मल इक्वेशन्सला मग लिहिताना असं उलट लिहिलं. ओके. किंवा ह्या नॉर्मल इक्वेशन्सला मला लिहिणं सोपं जाईल असं उलट. सो मी ह्यांना लिहिताना असं लिहितो.
एक्स प्राईम वाय इज इक्वल टू एक्स प्राईम एक्स बीटा हॅट. सो आता हे दोघेही सारखे दिसत आहेत. RHS राईट हँड साइडला माझे काय आहेत पॅरामीटर्स आणि लेफ्ट हँड साइडला LHS ला ऑब्झर्वेशन. येस. सो मग मयूर जर मला कोणी माझा एक्स प्राईम वाय मॅट्रिक्स विचारला, येस व्हॉट इज माय एक्स प्राईम वाय मॅट्रिक्स, सो व्हॉट आय शुड से, सो माय एक्स प्राईम वाय मॅट्रिक्स इज दिस. सी, so my x prime y matrix is this. First observation is y dot dot, second observation is y1 dot, y2 dot up to yi dot up to yp dot, and then so these are this first, then these are total p observations, and again y dot 1, y dot 2, so on up to y dot j, so on up to y dot q, और ये Q. ओके. सो फिर मेरा x प्राइम y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो ये बन गया P प्लस Q प्लस 1 क्रॉस 1. समझे? कैसे? क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन से ना भाई, तो ये RHS साइड है नॉर्मल इक्वेशन, LHS साइड है नॉर्मल इक्वेशन का, और नॉर्मल इक्वेशन का LHS साइड हमारे 2A एनोवा में ये आया है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यही मिलेगा, यही मिलेगा. यस, दैट इज द थिंग. ओके. नाउ हाउ वुड लुक माय पैरामीटर दैट बीटा हैट मैट्रिक्स. मेरा बीटा हैट मैट्रिक्स कैसे रहेगा? व्हाट इज बीटा हैट मैट्रिक्स मयूर? हेलो. Inverse. Matrix of parameter. Yes, beta hat matrix is nothing but matrix of parameter. तो कैसे दिखेगा रे भाई, ये कैसे दिखेगा? ये है म्यू हैट, ये मेरा पहला पैरामीटर. अल्फा 1 हैट, अल्फा 2 हैट, बीटा हैट प्राइम बोल रहा हूँ मैं. ये मैट्रिक्स मीन्स वेक्टर. वेक्टर. सो दिस इज अ बीटा हैट प्राइम मीन्स रो वेक्टर ऑफ पैरामीटर. सो ये रहेगा म्यू हैट, alpha 1 hat, so on up to alpha p hat. Yes. And then beta 1 hat, so beta 2 hat, so on up to beta q hat. क्या ये बात सबको समझी? तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया. कौन सा वाला हो गया रे बाबा? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? तो हाउ मेनी रोज? 1 रो, सिंगल रो. एंड हाउ मेनी कॉलम? सो p प्लस q प्लस 1. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. वजन किती है? डन. सो अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिला है. हेलो. तो हमें अपने नॉर्मल इक्वेशंस मिल गए. ये मैं सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस का एनालिसिस बता रहा था. अब इसका यूज बाद में करेंगे हम, तो ये भूलना नहीं. या कोई भूलेगा क्या? अरे हाँ ना बोल. नहीं. यस. सो लेट अस मूव ऑन. ये नॉर्मल इक्वेशंस. सो निनार, एकदा का नॉर्मल इक्वेशन मिळाले की आपण काय करतो रे? सॉल्व करतो त्यांना. येस. टू एस्टिमेट. ओके. टू एस्टिमेट द पॅरामीटर्स. पण आता हे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करण्यासारखे आहेत का? नो. आर दे सॉल्वेबल? सी इफ यू कॅन सी. ओके. इफ यू कॅन सी. नो. हा. इफ यू कॅन सी, जर ह्याची सम ओव्हर आय केली 1 to up to p. Okay, so this will become c y dot dot. This will become pq. कैपिटल N लिहिला ना मी इथे. सो कैपिटल N इज नथिंग बट pq. ये बात सबको समझेगा ना? कैपिटल N pq है. वहां पे समेशन ni कैपिटल N था, यहाँ पे pq है. यस. बिकॉज देर आर p ऑब्जर्वेशंस इन ith cell, whatever that you got to know what I want to say. Yes. So this will become pq mu hat plus q summation alpha I. Q into summation alpha I, because we are summing over alpha I. Yes. And then this will become plus c. There is no term of I over here, so that will become p into summation beta j. Yes. सो ये क्या बन गया रे भाई? पहला इक्वेशन बन गया.
Hello? Hello? Am I audible? Yes, yes. Yes. So जब मैं ये p इक्वेशंस का सम लेता हूं, सो मुझे पहला वाला इक्वेशन मिलता है, और यहाँ पे q इक्वेशंस का j गोज फ्रॉम 1 to up to q इक्वेशंस का सम लिया तो भी मुझे पहला वाला इक्वेशन मिलेगा. तो सी I got 2 linear combinations. Okay, 2 linear combinations which are giving me this first equation. Yes, so therefore my rank would reduce to 2, reduce by 2. My rank would reduce by 2. Okay, so to solve this such kind of equations, सी मी लास्ट टाइम आपल्याला किती लिनियर कॉम्बिनेशन ने आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन मिळालं होतं? एकच लिनियर कॉम्बिनेशन मिळाला होता स्नेहल. एम आय करेक्ट? हाँ. Yes. सो आपण किती कंडिशन अप्लाय केल्या? एकच कंडिशन अप्लाय केली. सो हियर वी हॅव गॉट 2 linear combinations. So therefore we will apply 2 conditions. That 2 conditions are called as non-estimability condition. Because जर ह्या कंडिशन आपण अप्लाय केल्या नाही, इफ वी डू नॉट अप्लाय दिस कंडिशन, वी कॅनॉट एस्टिमेट अवर पॅरामीटर. सो देन व्हॉट आर दॅट 2 non-estimability conditions? So to estimate this alpha I, or even in this thing, to estimate this alpha i's, I should assume this as 0. Okay, or even in this thing, to estimate this alpha I, we should assume this to be 0, and to estimate the beta j's, we should assume this term to be 0. So therefore we have 2 non-estimability condition, that summation alpha I is 0 and to summation beta j is equal to 0. समझा स्नेहल मैं ऐसा क्यों बोला? हेलो, सी यहाँ पे अगर मुझे अल्फा आई एस्टिमेट करना है, ओके, तो सी मेरे सारे टर्म्स आई के हैं, तो ये बीटा जे समेशन बीटा जे 0 बचता है, तो मैं अल्फा आई को इजीली एस्टिमेट कर सकता हूँ. ओके, और मुझे बीटा जे यहाँ पे एस्टिमेट करना है, तो ये बस मेरा 0 बन जाए, फिर तो मैं इसको एस्टिमेट कर सकता हूँ. यस, तो यही थिंग है. सिंचन हेलो, समझा सबको? हेलो, यस. तो आफ्टर, अरे यार मैं नेक्स्ट पे क्यों जाता हूँ? यस, तो वो नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडीशन अप्लाई करने के बाद, देखो ये मेरी नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडीशन थी, तो उनको अप्लाई करने के बाद मेरे नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बन गए? ओके, तो उधर ही सॉल्व करके दिखाऊं क्या? हाँ, तो सी स्मितल, if I apply this non-estimability condition, both alpha I is equal to 0 and beta j summation beta j is equal to 0, तो फिर मेरे पहले इक्वेशन में क्या बचेगा? हेलो, Mu hat. yes, so that we will left with only this thing. Okay, so then from this thing we can estimate that mu hat is equal to y dot dot upon pq. Yes, तो ये मेरा पहला लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हो गया, समझे? हेलो, Yes. अगेन इन दिस इक्वेशन इफ आई अप्लाई दिस बोथ थिंग्स, ओके, तो खाली ये टर्म 0 हो जाएगी. ओके, so then what we will left with, so see q alpha I is equal to y I dot minus q mu hat. yes, समझा? मी फक्त ही वाली टर्म 0 होऊन जाईल. ओके, ह्याच टर्म्स राहतील. मग क्यू अल्फा आय, आपल्याला अल्फा आय एस्टिमेट करायचा आहे, सो मी त्याला एका साईडला ठेवलं, बाकी सगळं तिकडे नेऊन टाकलं.
यस, क्या ये बात समझी? हेलो, यस। और ये क्या हो जाएगा जब मैं डिवाइड बाय क्यू करूंगा इसको? यस, सो दैट विल बी ओनली सी अल्फा आई, दिस विल बिकम वाई आई डॉट अपॉन क्यू माइनस this will become mu hat. Yes, hello, and Yes. okay, so what is my mu hat? So my mu hat is nothing but mu dot dot upon pq. Yes, and mu dot dot upon pq means y bar dot, sorry, y bar dot dot upon pq. So y bar dot dot, it will y bar dot dot. So y Yes. dot dot upon pq की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ? y bar dot dot. Yes. And Snehal, what is this yi dot upon q? Y bar I Y dot. bar. Yes, got it. Hello everyone. So this is y bar I dot minus y bar dot dot. So similarly बीटा j कैसा हो जाएगा रे बाबा? तो ये हो जाएगा y bar dot dot j minus y bar dot dot. Yes, क्या ये बात सबको समझी? हेलो, Yes. yes. Hello. So हाँ, yes, मीना. अरे प्रॅक्टिकल आज द्यायचे का तेव्हा? कोणतं? प्रिय सरांचं? अरे हा. लास्ट डेट तर आजच दिले, पण सॉल्व्ह केलंस का तू? नाही ना? नाही, जॉमेट्रिकचं नाही केलं. अरे मग आम्ही कोणीच नाही केलंय. हॅलो. हा, दर्शन तुझा आवाज नाही येते. त्यांनी हिंट दिली रे आज जॉमेट्रिकची, पण नाही केलं सॉल्व्ह आम्ही. ठीक आहे, मग सबमिट कोणी नाही केलंय ना ते? कोणीच नाही केलं. ठीक आहे. उद्या करूया. हा हा ठीक आहे. हा, ठीक आहे. सो मग आपले नॉर्मल इक्वेशन्स मगाशी जे मी सांगितले ते हे आपले, सॉरी, नॉर्मल इक्वेशन्स नाहीये, तर हे एस्टिमेट्स आहेत. हे आपले काय आहेत? लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट. So these are our least square estimates. Remember that. So these are our least square estimates. Yes, Nehal, am I correct? Hello? Yes. Okay. पण मला एक सांग स्मितल. हॅलो, आपल्याकडे किती टाईपचे लिनियर मॉडेल्स असतात? स्मितल, आर यू देअर? किती टाईपचे म्हणजे? म्हणजे रँकच्या हिशोबाने किती टाईपचे लिनियर मॉडेल्स असतात? फुल रँक आणि नॉन रँक. ओके, फुल रँक आणि नॉन फुल रँक. ओके, सो फुल रँक मॉडेल मध्ये इंडिव्हिज्युअल पॅरामीटर एस्टिमेबल असतात. येस. आणि नॉन फुल रँक मध्ये आर दे एस्टिमेबल इंडिव्हिज्युअल पॅरामीटर? नो. म्हणून ओके, पण म्हणजे आपण पण बघ, एक्स प्राईम एक्स बीटा हॅट इज इक्वल टू एक्स प्राईम वाय, हे आपल्याला नॉर्मल इक्वेशन मिळाले. ओके, हो. लिनियर मॉडेल्स मध्ये. त्यानंतर आपण बीटा हॅटचं जनरल सोल्युशन काढलं आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन पण काढलं. येस, एस इक्वल्स एक्स प्राईम वाय. सो हे जे दिसत आहेत ना तुला, हे इक्वेशन, हॅलो, हे जे इक्वेशन दिसत आहेत ना तुला, so that are nothing but the particular solution of beta hat. Got it? Getting it? Hello? येस. Okay. पर्टिक्युलर सोल्युशन नंतर आपण थांबलो का? नाही. आपण काय केलं की चेक केलं की बाबा मॉडेल फुल रँक आहे का? जर फुल रँक असेल तर इंडिव्हिज्युअल पॅरामीटर एस्टिमेबल असतील. पण जर फुल रँक नसेल, येस, तर मग आपल्याला काय करावं लागेल? हॅलो, एस्टिमेबिलिटी कंडिशन चेक करावे लागेल. यस, गॉट इट? सबको ये बात पता चली? तो लेट अस चेक बाबा कि हमें तो ये सॉल्यूशन तो मिल गया, जनरल सॉल्यूशन तो मिल गया, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मिल गया, पर अब हमें चेक करना है कि वेदर दे आर इंडिविजुअली एस्टिमेबल. अगर है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है then we have to consider the estimability condition. So then let us move on to rank of x. Okay, so what is rank of x now? See, so rank of x की definition है हमारे पास number of unknown parameters
and number of condition imposed. तो हमारे अननोन पैरामीटर्स कितने थे? म्यू अल्फाज पी थे और क्यू बीटास थे. म्यू ये अकेला था, तो p प्लस क्यू प्लस 1 ये हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स है. और कंडीशंस कितने अप्लाई किए हमने? दो, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा जे इज इक्वल टू 0, तो -2. सो रैंक कितना हो गया बाबा? p प्लस क्यू माइनस 1. क्या ये बात सबको समझी? हेलो हेलो. Yes, yes. So this is my rank. Now let us move on to estimability condition. Okay. So Ninal, what is my estimability condition? So see, my alpha i's, when my alpha i's would be estimable, so whenever summation of yi, not individually, summation ci yi is equal to summation ci alpha I, or I should say another linear combination ai alpha I or bi alpha I, whatever that. So let us consider this as di alpha I, another combination. Okay. So if this condition is true, that time, okay, Smithal, what was the estimability condition? So our estimability condition was expectation of mu prime y should be equal to lambda prime betas. Hello? Yes. Okay. So this mu prime y is nothing but summation mu I yi. Yes. In terms of summation, this matrix multiplication is written like this. Okay. And this lambda prime beta is nothing but it is summation lambda I beta I. Yes. तो वही चीज मैंने लिखी है, एक्सपेक्टेशन समेशन सी आई वाई, म्यू आई च्या जागी सी आई लिहिले फक्त. सी आई वाय आय शुड बी इक्वल टू समेशन डी आई अल्फा आय. That time I can say my linear combination of alpha i's are estimable. Okay. And secondly, what is the condition? That summation cj yj, expectation of summation cj yj should be equal to, let us say, aj summation aj beta j. Okay. So that is nothing but c, summation expectation of u prime y should be equal to lambda prime. Here it was for alphas, it is for betas. So lambda prime beta. Okay. इथे अल्फाज पॅरामीटर होते, इथे बीटाज पॅरामीटर आहे. ओके. सो मग u प्राइम y कॅन लॅम्बडा प्राइम बीटा कसे लिहू शकतो आपण? सो लॅम्बडा जे बीटा जे. ओके. अँड u प्राइम y ला आपण लिहू शकतो uj yj, समेशन uj yj. सो दैट इज द थिंग गिवन ओवर हियर. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. Yes. Okay. So let us consider कि अल्फा जेज एस्टिमेबल आहेत की नाही. ओके. अल्फाज एस्टिमेबल आहेत की नाही. ओके. So then let us consider the expectation of Cij Yij. Yes. So now expectation of Cij Yij. Yes. So that is nothing but double summation Cij Yij. That is nothing but double summation Cij out of expectation of Yij. And our Yij is what? Mu plus alpha I plus beta j minus Eij. So इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, और ये सारे कांस्टेंट है तो इतना ही टर्म बचेगा. क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes, so expectation of y would be this, and ये हम जब पुट करेंगे तो फिर this is Cij, this is mu. Okay. So then this will become mu. Okay. Mu double summation Cij. Hello. Double summation Cij
प्लस अभी यहाँ पे क्या है अल्फा आई, ओके। तो सी आई जे आई और जे पे दोनों पे डिपेंड करता है, ओके। पर अल्फा आई जे पे नहीं डिपेंड करता है, तो दैट वुड बी आउटसाइड ऑफ जे, ओके। सिमिलरली बीटा जे आई पे नहीं डिपेंड करता, सो दैट वुड बी आउटसाइड ऑफ जे। क्या ये बात सबको समझी? हेलो। सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस इक्वेशंस, ओके। सो अब अगर तुम लोग देखोगे तो मुझे ओके, सो मेरी कंडीशन क्या मिल गई कि डबल समेशन सी आई जे वाई आई जे, मेरा क्या मिल गया? तो मुझे मिल गया म्यू इंटू डबल समेशन सी आई जे प्लस समेशन अल्फा आई ओवर आई इज इक्वल टू जे सी आई जे, प्लस समेशन बीटा जे सी आई जे आई एंड जे। सो जब हेलो प्रीति हेलो, यस, मेरे अल्फा कब एस्टिमेबल रहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। यस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी आई जे वाई आई जे इज इक्वल टू डबल समेशन व्हाट आई शुड से डी आई अल्फा आई होगा, तब मेरे अल्फा एस्टिमेबल रहेंगे। हेलो, यस, यस। तो मतलब इसका एक्सपेक्टेशन अगर खाली अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा तभी मेरे अल्फा एस्टिमेबल रहेंगे। समझा? हेलो स्मितल, ये बात समझी? संतोषी, हो, आपण आधी केलं होतं वन वे मध्ये, जैसा हमने पहले किया था। सो अल्फा तब एस्टिमेबल रहेंगे जब एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म शुड बी इक्वल टू डी आई अल्फा आई, समेशन डी आई अल्फा आई। ये हमने पहले ही देखा था एस्टिमेबिलिटी कंडीशन में। तो डी आई अल्फा आई होना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म, पर है क्या अभी? हेलो, है क्या? नहीं, पर कब जीरो होगा? डबल समेशन सी आई जे 0 असेल कब? हाँ, कब इक्वल होगा? कब इक्वल होगा? तो सी, ये टर्म, ये एल एच एस, ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म खाली इस टर्म के इक्वल कब होगा? खाली इस टर्म के इक्वल कब होगा? जब ये दो टर्म जीरो हो जाएंगी। संतोषी, ये बात समझी? हेलो योगेश, समझला? मयूर, हो ओके। तो ये दोनों, सो ये दो टर्म जीरो होना चाहिए। सो ये दो टर्म जीरो होना चाहिए, मतलब म्यू तो कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। दिस इज व्हाट डबल समेशन सी आई जे ओवर आई एंड जे शुड बी जीरो। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? हेलो, दूसरा कंडीशन इज ये समेशन सी आई जे, समेशन सी आई जे, ओके, ओवर व्हाट? ओवर आई शुड बी जीरो। यस, क्या ये बात सबको समझी? हेलो, ओके। नाउ तो अभी ये जो अंदर का है, हेलो, तो सी एक्सपेक्ट, अगर ये दोनों जीरो हो गए स्नेहल, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास बचेगा Middle डबल term. सी आई जे वाई आई जे, एंड व्हाट इज दैट मिडल टर्म? सो दैट इज नथिंग बट समेशन ओवर आई गोज फ्रॉम 1 to up to p अल्फा आई इंटू समेशन जे सी आई जे। एम आई करेक्ट स्नेहल? हेलो, येस, ओके। पण ही टर्म इक्वल टू काय पाहिजे होती मला? अल्फा आई डी आई पाहिजे होती। हेलो, येस, ओके। पण जर मला एक सांग, वाय आय जे ला जर सम ओव्हर जे केला तर तुला काय मिळतं? वाय आय डॉट, वाय आय डॉट। सो मग सी आय जे ला जर सम ओव्हर जे केला तर तुला काय मिळेल? सी आय डॉट, सी आय डॉट, ओके। सो सी आय इज द
thing or whatever that value which only depends upon I. Am I correct? Yes. So can I say my Ci dot as di Yes. for time being? So can I, and what is this thing? So this is nothing but summation Cij over j. So can I say this as di? प्रीति ये बात समझा आपको? क्षमा, hello? Yes. Yes? प्रीति, hello? Yes. Yes. So I can say it as alpha I di, where I goes from 1 to up to p. Yes? Where di is what? So di is nothing but, Ci dot. okay. So di is nothing but Ci dot mein. So di is nothing but summation Cij over j. Okay. So now what was our estimability condition? So our estimability condition was this. Okay. So what is this? So see, if you can see this, it is I goes from 1 to up to, hello, 1 to up to p. Okay. Summation j goes from 1 to up to q. Cij is equal to 0. But प्रीति, हमने क्या कंसीडर किया है समेशन Cij ओवर j को? हेलो? Di. Yes. So this is di. Sum of di over p is equal to 0. Yes. So my parameters. Okay. So अब इससे मैं क्या कह सकता हूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज, दैट इज नथिंग बट अल्फा आई डी आई इज एस्टिमेबल. कब एस्टिमेबल रहेगा? इफ समेशन डी आई इज इक्वल टू 0. तो ऐसे टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? हेलो? The linear combination such that उनके कोएफिशिएंट का सम अगर 0 है, as therefore I can say not just linear combination but linear contrast of alphas are estimable. क्या ये बात सबको समझी? हेलो निनाद? यस मित्तल? Yes. Yes. मयूर? Yes. यस. सो मयूर, लिनियर कॉन्ट्रास्ट काय असतात माहितीये तुला? आपण हा? डिटेल देतो दोन टाइपचे कॉन्ट्रास्ट, जनरल आणि लिनियर. ओके. सो लिनियर, येस, कॉन्ट्रास्ट काय असतात माहितीये का? ओके. सो कॉन्ट्रास्ट आर नथिंग बट, सी, कॉन्ट्रास्ट आर नथिंग बट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरामीटर्स. दॅट्स इट, सिम्पल. कॉन्ट्रास्ट म्हणजे काय? लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरामीटर्स. पण हे स्पेशल लिनियर कॉम्बिनेशन असतात बघ, पॅरामीटर्स. सो मग अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इट अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरामीटर? हेलो? हेलो? Yes, it is a linear combination of parameter. Alpha 1 plus 2 alpha 2. Alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3. These are the linear combinations of parameter. Alpha 1 minus alpha 2. Alpha 1 plus alpha 2 minus 2 alpha 3. So these are linear combinations of parameters. So हे फक्त linear combinations आहेत. पण यांच्यातले जर तुम्ही हे बघितलं तर यांच्या कोएफिशिएंटची सम किती येते? 2. यांच्या कोएफिशिएंटची सम येते 3. यांच्या कोएफिशिएंटची सम येते 4. बट यांच्या कोएफिशिएंटची सम येते 0. यांच्या कोएफिशिएंटची सम येते 0. सो सच लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरामीटर की ज्यांच्या कोएफिशिएंटची सम ही 0 येते त्यांना लिनियर कॉन्ट्रास्ट म्हणतात. समजलं? हॅलो? Yes. समझा? यस. सो इफ यू कैन सी which linear combination is estimable, so if you can see linear combination of alpha I di, that is summation alpha I di म्हणजे linear combination of alpha I di ना.
Okay, so linear combination of alpha is, that is summation alpha I di is estimable, आपल्याला मिळालंय. पण केव्हा? If and only if summation di is equal to 0. And what is di? So di is nothing but coefficient of alpha in linear combination. And if the coefficients sum of coefficients of alphas in the linear combination is 0, such linear combination is called as contrast. Got it? Hello? Yes. Yes. So on the similar manner, we can prove that contrast of beta j's are 0. Sorry, contrast of beta j's are estimable. Okay. So see, जेव्हा expectation of summation double summation Cij Yij काय आलं होतं स्नेहल? So that was nothing but mu double summation Cij plus what was again? Summation alpha I C. Summation alpha I summation Cij over j. Am I correct? Yes. Plus summation beta j, which is over j, summation Cij over I. Yes. So मग माझे बीटा जेच केव्हा एस्टिमेबल असतील? जेव्हा ह्या दोन टर्म 0 असतील. हॅलो. Yes. Yes. संतोषी, आर यू गेटिंग दिस? हॅलो. माझे बीटा जेच तेव्हा एस्टिमेबल असतील जेव्हा दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म. यस, दिस टर्म अलोन. अँड हे इक्वल केव्हा असतील? जेव्हा ह्या दोन टर्म 0 असतील. आणि ह्या दोन टर्म 0 केव्हा असतील? जेव्हा फर्स्ट समेशन Cij 0 असेल, सॉरी डबल समेशन Cij 0 असेल आणि दिस सेकंड Cij ओव्हर j 0 असेल. यस, तेव्हा माझे बीटाज एस्टिमेबल असतील. Yes, then this expectation will be equal to this thing. Hello. आणि मग ह्याला जर मी सपोज Aj कन्सिडर केला. Yes, so then this term will become summation beta j Aj. Am I correct, Snehal? J goes from 1 to up to q. So is it a linear combination of betas? Yes. Yes, yes, it is a linear combination of betas. And when it is estimable, so it is estimable if and only if this Summation beta j summation, yes, summation Cij is 0 over I and j. Am I correct? Hello. This is estimable if and only if this is 0. Okay. And what we have considered this summation Ci, so I will bring out this j outside, okay, and this summation I Cij is equal to 0. And what is this summation Cij over I? So that is nothing but Ai's. Sorry, that is nothing but Aj's. Am I correct? yes. So these are estimable if and only if summation Aj's are 0. So such linear combination, such estimable linear combination is called as contrast. Am I correct? Yes. So this is the contrast of betas. So again we can say that contrast of betas are estimable. Got it everyone? Hello? प्रीति, समझा ये बात आपको? हेलो. यस. सो एस्टिमेबिलिटी. सो अब तक हमने क्या देखा? वाई मॉडल देखा, उस मॉडल देखा, लीस्ट स्क्वायर देखा एंड उसके बाद एस्टिमेबिलिटी कंडीशन देखी. ओके. यही चीज हम अलग वे में भी प्रूव कर सकते हैं. ये हमने फॉर्मल डेफिनेशन है ना एस्टिमेबिलिटी, उससे प्रूव किया. तो दूसरा प्रूफ भी कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप रीड करोगे तो समझेगा. पर आई गेस अगर तुम्हें प्रूव करने को बोला है, प्रूव दैट कॉन्ट्रास्ट आर एस्टिमेबल, यस, तो इतना लिखना
काफी है। यस, दोनों चीजें लिखना जरूरी नहीं, दोनों में से एक चीज लिख दी तो भी दैट इज सफिशिएंट। चलेगा। ओके, यस। सो दूसरा प्रूफ क्या है? यस, दूसरा प्रूफ ये नॉर्मल इक्वेशंस थे हमारे। हेलो, यस। ओके, सो हे नॉर्मल इक्वेशंस होते। सो इफ आई डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय पी क्यू, ओके, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरे नॉर्मल इक्वेशंस को पी क्यू से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू बन जाएगा y बार डॉट डॉट। एम आई करेक्ट? हेलो प्रीति, पुरुषोत्तम, यस। Yes. एंड दिस म्यू हैट, ये म्यू हैट रहेगा क्योंकि ये पी क्यू एंटायर इक्वेशन को हम पी क्यू से डिवाइड करें। हाँ, तो ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू हैट अकेला बच जाएगा। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये है अल्फा आई हैट का सम ओवर आई गोज फ्रॉम 1 to up to p एंड डिवाइड बाय p, इतना ही बचा, बराबर। तो अब हमें पता है कि सम ऑफ p ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय p, सो ये क्या होता है? मीन होता है। एम आई करेक्ट? इज इट द डेफिनेशन ऑफ मीन? हेलो, मीन का क्या डेफिनेशन होता है? हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फिर इसको जब पी क्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये खाली ये चीज बचेगा, और इसको हम कहेंगे अल्फा बार हैट। समझा? और सिमिलरली यहाँ पे पी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा बीटा बार हैट। क्या ये बात सबको समझी? हेलो, yes, so shall I move on to next? यस। Okay, so वहां पे वही चीज बताया है कि व्हाट इज अल्फा बार हैट एंड बीटा बार हैट। यस, तो उसका डेफिनेशन दिया है जो कि मैंने पहले ही समझा दिया। नाउ सी, यस स्नेहल, अल्फा बार हैट, expectation of alpha bar hat is nothing but alpha bar. Am I correct? यस। Because it is a estimated value, na? So its expectation should be, see, whenever we are seeing this is as a estimate, so मग जर estimated value असेल तर त्याचं expectation आपला पॅरामीटर आला पाहिजे. हाँ. So expectation of beta bar hat would be beta bar simply. Am I correct? यस. आपला जो y बार डॉट डॉट होता म्यू हॅट प्लस अल्फा बार हॅट प्लस बीटा बार हॅट, सो याचं जेव्हा मी एक्सपेक्टेशन घेईल सो एलएचएस ला राहील एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार डॉट डॉट इज इक्वल टू म्यू हॅटचा एक्सपेक्टेशन येईल म्यू, अल्फा बार हॅटचा एक्सपेक्टेशन येईल अल्फा बार आणि बीटा बार हॅटचा एक्सपेक्टेशन येईल बीटा बार. सो दैट इज गिवन ओवर हियर. क्या ये बात सबको समझी? हेलो, Okay. Yes. yes, okay, so this is what we have got from our first normal equation. Okay, what is our second normal equation, Snehal? So our second normal equation is yi dot is equal to q mu hat plus q alpha I hat plus summation beta j. यही था हमारा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन. स्नेहल, हॅलो. Yes. Yes. यस. सो आता मी काय करतो, हॅलो, सो सी आय किती व्हॅल्यू घेते? हॅलो, 1 to 3 1 to p. ओके, सो मी इथली मधली एक व्हॅल्यू कन्सिडर केली 3 आणि दुसरी व्हॅल्यू कन्सिडर केली 5. ओके, सो 3 साठी एक इक्वेशन झालं आणि 5 साठी एक इक्वेशन झालं. सो मग 3 ला म्हणतो मी आय आणि 5 ला म्हणतो मी यू. चालेल? चालेल? हॅलो. हाँ. ओके, सो देन फॉर y3 फॉर I is equal to 3, so it will become y3 dot, so q mu hat plus q alpha 3
प्लस व्हॉट समेशन बीटा जे. इथे तर आयची टर्म नाहीये. आणि वाय फायला इथे वाय फाय डॉट क्यू म्यू हॅट प्लस क्यू बीटा अल्फा फाय प्लस बीटा जे. सो ह्या दोन वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज पुट केल्यानंतर हे दोन वेगवेगळे इक्वेशन मिळतात. सो म्हणून मग मी एकाला आय कन्सिडर केलं, एकाला यू कन्सिडर केलं. सो देन माय इक्वेशन रिमेन सेम, फक्त आयच्या जागी यू ने रिप्लेस केलं आपण. यस, क्या ये बात सबको समझी? हेलो, से यस इफ यू अंडरस्टूड. प्रीति समझा आपको? हेलो, Yes. हम क्या प्रूव कर रहे हैं प्रीति? कॉन्ट्रास्ट आर एस्टिमेबल. यस, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरामीटर आर एस्टिमेबल, वही प्रूव कर रहे हैं हम. ओके, सो अब देखो. सो देन व्हाट इज दैट थिंग? हेलो, सो टेक द डिफरेंस ऑफ अबाउट टू इक्वेशन. सो इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया तो एलएचएस पे क्या बचता है? हेलो, तो एलएचएस पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बचता है. और आरएचएस पे अगर देखोगे तो क्यू म्यू हैट ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए है ना हमने? यस. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए हो ना, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं है इसमें. तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा? ओनली वाई आई डॉट माइनस वाई यू डॉट इज इक्वल टू आरएचएस पे क्या बचेगा? क्यू कॉमन अल्फा आई हैट माइनस अल्फा जे हैट. यस, क्या ये बात सबको समझी? हेलो, Yes. सॉरी जे नहीं, अल्फा यू हैट, यू कंसिडर किया था ना, अल्फा यू हैट. यस, तो वही बचा. हेलो, इंटू क्यू. हेलो, क्यू. ओके, एंड जब मैं क्यू से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को तो ये बच जाएगा वाई बार वाई आई डॉट अपॉन क्यू वाई यू डॉट अपॉन क्यू. ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आई हैट, और ये इतना ही बचेगा. बराबर. तो हमें पता है कि वाई आई डॉट अपॉन क्यू इज नथिंग बट वाई बार आई डॉट. सो वाई यू डॉट अपॉन क्यू वुड बी वाई बार यू डॉट, सॉरी यू डॉट. एम आई करेक्ट स्नेहल? हेलो, Yes. yes, Santoshi, got it? Hello, Yes. 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 So this is the thing. Okay, so now if I take the expectation over all these quantities, so this is expectation of this quantity. Okay, and we know that expectation of alpha I hat is alpha I hat, and expectation of expectation of alpha U hat is equal to alpha U. Sorry, not alpha U hat. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Yes. So therefore expectation of this would be this thing, alpha I minus alpha U. Sorry, Snehal, individual parameters are not estimable, so I cannot take directly expectation of alpha I and alpha U separately. हाँ, कॉन्ट्रास्ट So, द्यायला पाहिजे. yes, so contrast, expectation of this contrast would be simply alpha I minus alpha U. Yes, कारण की आपण बघितलं ना स्नेहल, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी आय अल्फा आय इज इक्वल टू व्हॉट? समेशन डी आय अल्फा आय. Yes. So this is what? This is ci alpha I, if you can see, and this is di alpha I. Are you getting this, Nehal? Yes. 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 So that is the thing. So जर तू नीट बघितलास, हॅलो, जर तू नीट बघितलास, the expectation of this thing is coming out to be this. Okay, so that is nothing but, see, what is this? So isn't it a linear combination of y? Yes. Linear combination of y is equal to linear combination of alphas. Yes. So what is our estimability condition? Expectation of u prime y should be equal to what? Lambda prime beta. Yes.
And what is lambda prime beta? Linear combination of lambda prime beta in the sense linear combination of parameters. And this is linear combination of observations. So what we are getting? Expectation of linear combination of observations is equal to linear combination of parameters. So hence, this linear combination of parameters is estimable. So hence, and which type of this linear combination is this? If you can see, this is alpha I minus alpha u. Okay, I can say that it is alpha 1 minus alpha 2. I can, if I is 1 and u is 2, I can say it as alpha 1 minus alpha 3. I can say it as alpha 2 minus alpha 3. So what is this? If you can see, sum of its coefficient is what? Snehal? Hello, Santoshi. What is the coefficient sum? 0. So isn't it a contrast? Hello, isn't it a contrast? Yes. Yes. So therefore, by using this thing, we have derived that contrast are estimable. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? हाँ. ओके, तो तुम लोग क्या करो? सी, अपना थर्ड नॉर्मल इक्वेशन है, उसको लेके मुझे प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखाओ कि कॉन्ट्रास्ट ऑफ बीटास आर एस्टिमेबल. ये होमवर्क है तुम्हारे लिए. क्या प्रूफ कर पाओगे? बिना देखे करने का. डोंट रेफर द नोट्स. अगर नोट्स रेफर किए तो मुझे पता चल जाएगा. अपने वर्ड्स में लिखो. मैं ये चीज कैसे लिखूंगा, अगर मुझे पूछा जाए तो कैसे लिखूंगा मैं बताता हूँ. ओके, सो दैट बीटास के लिए कैसे करने का तुम्हें आइडिया आएगा. हेलो, समझे? ओके, सो इसको लिखूंगा फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन 1. इसको मैं लिखते हुए ऐसे लिखूंगा. सो फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, दैट इज फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन 2 की बजाय मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन व्हाट दिस आई हैव गॉट. Okay, this is my second normal equation. Okay, and for different value, for let us say for different value of I equal to u. So अगर I for different value of I equal to u, my this equation will become this. Am I correct, Snehal? Yes or no? Say something. Am I correct? Yes. Yes. And I will take the subtraction of. I will solve this. So we can say that solving this equation simultaneously. Solving this equation simultaneously. So simultaneous equation कैसे solve करते हो? X plus y is equal to 2x plus minus y is equal to 3. तो ये जैसे simultaneous equation solve करते हो ना, वैसे ही solve करने का इसको. Yes, something get cancel and whatever that. So वैसे ही करो और इसको सॉल्व करके तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा. फिर Q से डिवाइड करो पूरे टर्म को, तो ये थिंग बन जाएगा. ओके, और फिर इसका एक्सपेक्टेशन ले लो तो ये मिल जाएगा. बराबर. तो ये चीजें, ये बीच का मसाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम्हें. समझे? डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर दिए तो डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाओगे. ओके, और फिर उसके बाद डिवाइडिंग बाय क्यू करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो तुम. ओके, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन लिए तो ये मिलेगा. और फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन is coming out to be or is equal to linear parametric function of alphas. Hence, and the in linear parametric function of alphas, in linear parametric function of alphas, yes, summation ci is coming out to be 0. Yes, so hence contrast of alphas are estimable. ओके, तो ऐसे में माल मसाला लिखूंगा यहाँ पे जो कि दिया नहीं है. अगर वो दिया होता ना तो ये पढ़ के ही समझ में आता, पर दिया नहीं है तो समझ नहीं आ रहा है. ओके, क्या ये बात सबको समझी अभी?
और ये डेफिनेशन कहाँ से आया संतोषी? एक्सपेक्टेशन ऑफ लीनियर, तो वो डेफिनेशन था एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्राइम y शुड बी इक्वल टू लैम्बडा प्राइम b. u प्राइम y इज लीनियर फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैम्बडा प्राइम बीटा इज लीनियर फंक्शन ऑफ पैरामीटर. तो ये अब मुंह पार्ट टोन पार्ट होना चाहिए. यस Yes. अभी ये जबान पे किसी ने नींद से भी उठा के पूछा व्हाट इज माय एस्टिमेबिलिटी कंडीशन, सो दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी इक्वल टू लीनियर फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स. गॉट इट? Yes. यस. सो बीटास के लिए प्रूफ करोगे? अरे हाना बोल. यस. सो वी आर डन विद आवर एस्टिमेबिलिटी कंडीशन. यस. अब 20 मिनट बचा है हमारे पास और टेस्टिंग पे जाने से पहले, सो टेस्टिंग तो नहीं कर पाएंगे हम, पर हम सम ऑफ स्क्वायर निकाल पाएंगे जरूर. तो हम आज सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं और रुक जाते हैं. ओके. सो स्मितल, आर यू देयर? हेलो. यस. सो अब हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं. सो व्हाट वाज द सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन? हेलो, क्या तुम्हें याद है? इन आवर व्हाट दैट चैप्टर, यूनिट नंबर 2 of Dikshit ma'am, what is sum of square regression? Hello? बीटा है. Yes. बीटा है. Sum of square regression is equal to beta hat prime x prime y. Am I correct? Hello? Am I correct? Hello? Yes? Okay. Now, Santoshi, what was my beta hat prime matrix? Do you remember? See, Mu alpha 1 alpha. here, yes, very good. Here in two-way ANOVA, what is beta hat prime? So that is the thing, but mu alpha 1 hat, beta hat prime, alpha 2 hat, so on up to alpha k hat, so on up to beta 1, beta 2, alpha p and beta q. क्या ये बात सबको समझी? हेलो मैवश. Yes. एंड मयूर, व्हाट वाज x प्राइम y? Y1 y dot dot y1 dot Yes. up to y dot and then yp. yp dot, then Y y dot dot y. 1 up to, Y dot q. yes. Done. Hello. Yes. So now see, if you can see this beta hat matrix, what are the dimensions of this beta hat matrix? 1 cross p plus q plus 1. Am I correct? And dimensions of this x prime y, p plus q plus 1 cross 1. Hello? So 1 cross p plus q plus 1. And again multiplication with x prime y. Aparna, what is the dimension of this? P plus q plus 1 cross 1. तो क्या ये मल्टीप्लीकेबल है? तो आर दे कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन? अपर्णा, हेलो हेलो, मल्टिप्लाय करू शकतो? येस. हे दोघे इक्वल असतील तर मल्टिप्लाय करू शकतो ना? Yes. आणि वॉट एव्हर द रिझल्टंट मॅट्रिक्स, that matrix is sum of square man. Yes, whatever that sum of square regression matrix. So what would it have order? So it will have order 1 cross 1. Yes, and matrix with 1 cross 1 order called as scalar. Am I correct? So whatever that sum of square regression, see sum of square regression कधीच काय मॅट्रिक्स नसतो, ती एक व्हॅल्यू असते नाही का स्नेहल? Yes, yes. त्या व्हॅल्यू, that value in the matrix theory, a single value is called as scalar. Yes,
मॅट्रिक्स थेअरी मध्ये सिंगल व्हॅल्यू आपण नुसती व्हॅल्यू नाही म्हणत, स्केलर म्हणतो. Yes. जर किंवा कॉलम रो मॅट्रिक्स असेल किंवा कॉलम मॅट्रिक्स, रिमेंबर ऑलवेज, जर 1x1 मॅट्रिक्स असेल तर त्याला स्केलर म्हणतो. येस. n×1 मॅट्रिक्स असेल तर त्याला म्हणतो आपण कॉलम वेक्टर. 1x n मॅट्रिक्स असेल तर त्याला म्हणतो आपण रो वेक्टर. आणि जेव्हा m×n किंवा n×n मॅट्रिक्स असेल तर त्याला मॅट्रिक्स म्हणतो आपण. ह्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत, ह्या तुम्हाला कोणी सांगणार नाही या लेवलला आल्यावर. ओके, बट आय एम टेलिंग यू बिकॉज आय नो. Yes. So now what would be the multiplication of these? चलो करो multiplication. चलो ले लो किला, चलो. Yes. Sum of square r. चलो हा गड आता आपल्याला सर करायचा आहे. Yes. बताओ, चलो कोई तो रेडी हो जाओ, वॉलेंटियर. आई नीड वन वॉलेंटियर हु कैन डू द मल्टीप्लिकेशन फॉर मी. मैं मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छा हूँ रे बाबा. यू हैड. चल चला पटकन रेडी हो रहे, टाइम वेस्ट नका करू. हो गया. सांग, व्हॉट इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस टू थिंग्स? हेलो. Mu hat y dot dot plus summation alpha I y dot I goes from Yeah. 1 to up to p. हेलो. हाँ. सो म्यू हैट Y dot dot. y डॉट डॉट. मला ना स्नेहल स्प्लिट करून नको सांगू, ते नंतर मी एक्सप्लेन करेलच. ओके. सो दॅट इज नथिंग बट Okay. नेक्स्ट इज y अल्फा 1 हैट Into Y1 y1 dot. y1 dot plus alpha 2 hat into y2 dot so on up to alpha p hat into yp dot. Am I correct? क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. अरे इथे इंटू है ना रे, सॉरी मैंने तो गलत. क्या करता है रे राज, ऐसा है रे तू. Yes. And then next terms would be beta 1 hat into y dot 2 plus so on Y up dot to 1. sorry y dot 1. Beta 2 hat is y dot 2 so on up to. इथे मध्ये स्नेहल कोणती टर्म येईल? सपोज इफ आई से अल्फा आई हैट, सो ये होगा y I dot. Yes. एंड इथे मध्ये येईल बीटा जे हैट into Y dot j. हाँ y dot j and so on up to beta q hat into y dot q. Am I correct? क्या ये बात सबको समझी? हेलो. Yes. तो फिर मेरा सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन क्या बनेगा रे बाबा? तो ये बन जाएगा म्यू हैट y डॉट डॉट, और ये है देखो, तो ये है अगर मैं अल्फा आइज को रन करूंगा तो ये है, तो ये तो प्लस 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 मतलब ये है समेशन. ओके. और मेरा आई रन होगा 1 से लेके p तक रे बाबा. तो ये हो गया आई गोज फ्रॉम 1 to up to p अल्फा आई y I डॉट. एम आई करेक्ट? Yes. So अल्फा आई y I डॉट प्लस ये क्या बन जाएगा रे बाबा? समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to up to q. Hat. Yes, hat would also be there. So beta j hat into y dot j. क्या मैं सही बोला रे? हेलो. Yes. So this is my sum of square due to regression. Yes. And we know that what we know, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व किया था करे बाबा, तो उससे हमें क्या मिला था? उससे मिला था म्यू हैट इज इक्वल टू y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू. एम आई करेक्ट? अल्फा आई हैट इज इक्वल टू क्या था? y I डॉट माइनस y बार I डॉट माइनस y डॉट डॉट
सॉरी y बार डॉट डॉट, क्या मैं सही था? हेलो हेलो, हाँ तो ये क्या बन जाएगा रे? ये बन जाएगा, देखो ये y डॉट डॉट को मैं लिखेगा y i डॉट अपॉन व्हाट p, एम आई करेक्ट? p ही था क्या रे? y i डॉट ना, क्यू y, रहेगा ना। हाँ q, y i डॉट अपॉन q, हेलो यस, माइनस ये y बार डॉट डॉट को लिखेगा y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू, यस। तो मेरा म्यू बन गया y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू, अल्फा आई बन गया y i डॉट अपॉन क्यू माइनस y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू, एंड वैसे ही बीटा जे हैट बन जाएगा y डॉट जे अपॉन पी माइनस y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू। क्या ये बात सबको समझा? तभी मैं आगे बढ़ूंगा रे। हेलो यस Yes. यस, समझा? हेलो प्रीति, नवश, मयूर, अपर्णा, Yes. कळलं. हाँ यस यस। सो अभी यहाँ पे मैं y डॉट डॉट पहले से ही एक है और ये म्यू हैट का y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू, तो ये तो बन जाएगा रहे y डॉट डॉट स्क्वायर अपॉन पी क्यू, यस, एम आई करेक्ट? हेलो, Yes. प्लस ये क्या बनेगा, देखो ये है समेशन ओवर i गोज फ्रॉम 1 टू अप टू p, और ये है अल्फा i हैट, ओके। तो ये y i डॉट अपॉन q माइनस ये हो गया y डॉट डॉट अपॉन पी क्यू, ये पुट कर दिया मैं, ओके। और ये हो गया y i डॉट एज इट इज, एम आई करेक्ट? क्या ये बात सबको समझ आ रहा है? हेलो, ओके। Yes. यस हाँ, उसके बाद क्या होएगा इसका, देखो देखो, PQ रहेगा क्या रे? हाँ रहेगा, रहेगा 100% रहेगा, ओके। और उसके बाद आगे का टर्म बताओ रे तुम। हा इथे कुठे आलं, कसं काय आलं रे हा डॅश? हा घालवण्यासाठी मी किती मेहनत करतो। तो ये क्या था y i डॉट, ओके। और आगे का टर्म है समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू अप टू q, यहाँ पे बीटा हैट j की जगह पे आएगा y डॉट j माइनस अपॉन p माइनस डॉट डॉट अपॉन पी क्यू इंटू वाई डॉट जे, यस। तो अभी देखो ये क्या बन जाएगा, हाँ, तो ये तो हो गया y डॉट डॉट स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ओके। अब समेशन अंदर लगाएगा और ये भी मल्टीप्लाई करेगा, पहले में मल्टीप्लाई करके लेता है, आई गोज फ्रॉम 1 टू अप टू p, और ये समेशन को भी स्प्लिट करता है, तो ये बन गया i डॉट सी, y i डॉट जो है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन q माइनस समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू अप टू p, ओके। ये हो गया y डॉट डॉट इंटू वाई आई डॉट अपॉन पी क्यू, एम आई करेक्ट? प्लस अगेन ये हो जाएगा y डॉट जे स्क्वायर अपॉन p, i गोज फ्रॉम 1 टू अप टू p, सॉरी 1 टू अप टू, सॉरी j गोज फ्रॉम 1 टू अप टू q, एम आई करेक्ट? और ये हो जाएगा अगेन समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू अप टू q y डॉट j अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे भी देखो तुम लोग, ओके। सो ये देखो ये टर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये टर्म एज इट इज रहेगी y i डॉट स्क्वायर अपॉन क्यू, हेलो यस, समझा? ठीक से लिखता हुआ, तो ये टर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, तो y डॉट j द होल स्क्वायर y i डॉट स्क्वायर समेशन y i डॉट स्क्वायर अपॉन q, ओके। इस टर्म को मैं फर्दर लेट दैट डॉक्यूमेंट बी सेव,
इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो ये बन गया अपॉन क्यू, आई गोज फ्रॉम 1 to up to p। ओके, और ये वाली जो टर्म है उसको भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, y डॉट जे स्क्वायर, j goes from 1 to up to q upon p। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता तो उसको एज इट इज लिख दिए। ओके, उसके बाद प्लस y डॉट डॉट द स्क्वायर अपॉन pq, ये भी एज इट इज रहा। अब देखो ये y डॉट डॉट, क्या ये डिपेंड करता है i पे? हेलो, नहीं, ये pq भी डिपेंड नहीं करता i पे, समझे? हेलो, तो ये बाहर आएगा, तो ये हो गया। देखो इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, तो ये हो गया y डॉट डॉट अपॉन pq बाहर के साइड, और ये हो गया yi डॉट, यस, एंड समेशन ओवर i गोज फ्रॉम 1 to up to p। तो ये क्या बन गया संतोषी? टेल मी व्हाट इज दिस थिंग? समेशन ऑफ yi डॉट ओवर i गोज फ्रॉम 1 to up to p। सो ये है y1 डॉट प्लस y2 डॉट प्लस, हाँ यस, yp डॉट। सो ये हो जाएगा y डॉट डॉट, एम आई करेक्ट? गॉट इट? हेलो, सो ये हो डॉट, ये हो गया y डॉट डॉट। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी एक y डॉट डॉट है, तो ये टोटल हो जाएगा y डॉट डॉट स्क्वायर अपॉन pq। एम आई करेक्ट? तो ये क्या बन गया रे? ये बन गया y डॉट डॉट स्क्वायर अपॉन pq। यस, एंड सिमिलरली दिस थिंग y डॉट डॉट pq बाहर is summation of y dot j over j will be y dot dot, so ये भी बन गया y dot dot square upon pq। यस, तो एक इसमें से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन क्या बन गया? हेलो, सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन बन गया yi डॉट स्क्वायर अपॉन q प्लस y डॉट j स्क्वायर अपॉन p माइनस y डॉट डॉट स्क्वायर अपॉन pq। क्या ये बात सबको समझी? हेलो, तो ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन है। हेलो, यस, Yes. ओके, नाउ स्नेहल, व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर एरर? TSS minus SSR. Yes, sum of square error is nothing but I should say y prime y minus beta hat prime x prime y. That is nothing but total sum of square minus this beta hat prime sum of square regression. Am I correct? So total sum of square क्या रहता है मेरा? तो total sum of square रहता है मेरा double summation yij square. Am I correct? Hello? Minus what is sum of square due to regression? So this is the sum of square due to regression. So ये हो गया yi dot square upon q minus y dot j square upon p माइनस का ये प्लस हो जाएगा y डॉट डॉट स्क्वायर अपॉन pq। तो ये बन गया मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर। यस, तो याद रखो ये सम ऑफ स्क्वायर एरर। ओके, और इसको मैं स्प्लिट भी कर सकता हूं कैसे? तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर है और इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं। यस, हेलो, क्या ये बात सबको समझी? हेलो, यस। सो ये हमारा हो गया यहां तक। सो हमने क्या क्या किया? मॉडल लिखा,
फिर हमने लीस्ट स्क्वायर्स किए, एस्टिमेट किए, उसके बाद हमने क्या देखा, रैंक चेक किया मॉडल का, एंड वी फाउंड दैट रैंक ऑफ मॉडल इज p प्लस क्यू माइनस 1। तो ये मॉडल साला नॉन फुल रैंक मॉडल निकला। तो ये नॉन फुल रैंक मॉडल निकला। तो फिर यार मेरे मुंह से निकल गया, अभी क्या करने का। सब्जेक्ट का ही इफेक्ट है शायद। यस, मॉडल, रैंक, मॉडल, फिर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, फिर रैंक, और फिर ये मॉडल नॉन फुल रैंक मिला। तो फिर इंडिविजुअल पैरामीटर्स एस्टिमेबल नहीं थे। तो फिर हमें क्या पता चला कि इंडिविजुअल पैरामीटर्स एस्टिमेबल नहीं थे। तो हम गए चेक करने क्या, एस्टिमेबिलिटी कंडीशंस। तो हम एस्टिमेबिलिटी कंडीशन चेक करने गए, एस्टिमेबिलिटी कंडीशन, और उससे हमें क्या पता चला, हमारी जनरल एस्टिमेबिलिटी कंडीशन थी, यस, दैट इज लैम्डा प्राइम। सो उससे हमें क्या पता चला कि लीनियर कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाट अल्फाज एंड बीटाज आर estimable, means linear parametric function of alpha such that their coefficient sum is 0, and linear parametric function of beta such that their coefficient sum is 0, that are estimable. Yes, तो ये हमारी estimability condition मिली। और उसके बाद हमने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर्स को एस्टिमेट किया। यस, तो कल के इसमें हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। Testing of all. यस, मुझे लगा बोलो क्या करेंगे, बोलो तो तुम लोग हवन करेंगे बोलोगे, बट तुम लोग जागे हो। यस, सो लेट्स पैक अप, actors, go home, have a good night. Yes, क्या सबको समझा आज का टू वे अनोवा? क्या मैं एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से?